Hello student, this is home assignment number 3 and this is based on the concept of average atomic mass and average molecular mass. I hope आपने इसे attempt कर लिया है. So first we'll see the answers and then we'll go for the discussions of the doubts. So this is home assignment number 3. So first we'll see the answers. So answers are for first question it is 12.011 unit. Second question it is 39.948. Third question it is 51.996. Fourth question it is 2%. Fifth question it is 3.01 into 10 power 20. Sixth question it is 25%. Seventh question it is 66.5. Eighth question it is 10. Ninth question it is 112.94. And 10th question it is 80%. So now see the solutions. So first question was using the given data from the following table, calculate the molar mass of the naturally occurring carbon isotope. आपको कार्बन के 3 अलग अलग आइसोटोप्स दिए हुए हैं जिनकी रिलेटिव अबंडेंस और एटॉमिक मासेस गिवन है. फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद है, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला मैंने आपको नोट्स में सिखाया हुआ था, दैट वाज A into M1 plus B into M2 plus C into M3 upon A plus B plus C. ABC जो है वो नेचुरल अबंडेंस है. तो अगर फॉर्मूले के बेसिस पे मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये आपके लिए ABC की तरह काम कर रहा है. सो दिस वैल्यू एक्स एज ABC और ये आपके लिए M1, M2 और M3 हो रहा है. तो फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो इट इज A into M1 plus B into M2 plus C into M3 अपॉन A plus B plus C. सम करके देखोगे तो दैट इज 100. तो ये आपका 12.011 अराउंड आंसर आ जाएगा. ठीक है, आपने कर ही लिया होगा. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2. यूजिंग द गिवन डेटा in the following table, the molar mass of naturally occurring argon isotopes are. तो फिर से देखो आइसोटोपिक मासेस गिवन है तो फॉर्मूले के हिसाब से ये आपको M1, M2, M3 गिवन है और ये नेचुरल अबंडेंस ABC गिवन है. सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A into M1 plus B into M2 plus C into M3 upon A plus B plus C. सो एवरेज मॉलिक्यूलर मास अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी A into M1 plus B into M2 plus C into M3 upon A plus B plus C. सो ये फाइनली सॉल्व होकर 39.948 आ जाएगा. क्लियर? Then the third question is given data of chromium for 4 naturally occurring isotopes are provided in the table. Calculate the average atomic mass of chromium. उसमें भी सेम लॉजिक, आपकी बार A, B, C, D 4 वैल्यूज हो गए और फॉर्मूला हो जाएगा A into M1 plus B into M2 plus C into M3 plus D into M4 upon A plus B plus C plus D. तो आप यहाँ पे देखो नेचुरल अबंडेंस ये आपका A, B, C, D हो गया. ये एटॉमिक मासेस M1, M2, M3, M4 हो गया और फॉर्मूला अप्लाई करना है A into M1 plus B into M2 plus C into M3 अपॉन plus D into M4 अपॉन A plus B plus C plus D. देखो A into M1, B into M2, C into M3, D into M4 अपॉन A plus B plus C plus D. सम करोगे तो 100 आ जाएगा. सॉल्व करने से ये 51.996 आ रहा होगा. I hope it is clear to everyone now. Then question number 4 was there. Question number 4 is given an element X have isotopes X20, X21, X22. The percentage abundance of X20 is 90% and its average atomic mass of the element is 20.18. Percentage abundance of X21 should be. तो देखो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि टोटल परसेंटेज तो 100 होना है. एक का नेचुरल अबंडेंस परसेंट 90 गिवन है तो दूसरे वाले का X21 का हमने एज्यूम कर लिया 1, तो ऑटोमेटिकली X22 के लिए 10 माइनस आ जाएगा. टोटल इज 100. So let percentage abundance of X21 is A and percentage abundance of X22 will be 10 minus A. Average atomic mass का formula फिर से A into M1 plus B into M2 plus C into M3. So 90 into 20 plus A into 21 plus 10 minus A into 22 divided by 100 और ये आपको 20.18 given है. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू सॉल्व होके 2% आ जाएगी. ओके. Now question number 5.
Question number 5, it's given a sample of hydrogen gas is collected and it is observed that it contains only hydrogen and deuterium atom in the atomic ratios of 6000:1. The number of neutrons in 3 gram of such sample is should be nearly. तो देखो आपको अगर 3 ग्राम सैंपल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने मतलब आपको बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने सबसे पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 3/2, मास दिया 3 ग्राम और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हम लोग 2 यूज कर लेंगे। अब यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3/2 इंटू Na करना था, इंटू 2 करेंगे बिकॉज दिस इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रोस नंबर, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुए और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो इंटू 2 करा, ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए। आउट ऑफ दीज एटम्स द रेशियो इज 6000:1। तो नंबर ऑफ ड्यूटेरियम आइटम अगर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3/2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 2/6001। अब एवरेज ड्यूटेरियम आइटम हैज अ न्यूट्रॉन एटम, जबकि हाइड्रोजन एटम में कोई न्यूट्रॉन होता नहीं है। हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं, ड्यूटेरियम के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो जितने भी न्यूट्रॉन्स होंगे वो केवल ड्यूटेरियम के अंदर होंगे और नंबर ऑफ ड्यूटेरियम आइटम आप निकाल चुके हो तो उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करके आप सॉल्व करोगे तो 3/1000 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 है। इसको अगर अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 3 इंटू 10⁻20। ये बात समझ गए? हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है, ड्यूटेरियम के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, 1h2 बोलते हैं ड्यूटेरियम को। सो इट कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। तो जितने नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एटम होंगे उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, सो आंसर विल बी 3 इंटू 10⁻20। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is given an element is found in nature in 2 isotopic forms with mass numbers A-1 and A+3. If the average atomic mass of the element is found to be A, then the relative abundance of the heavier isotope in the nature would be. फिर same logic. Percentage abundance of heavier isotope अगर हम X assume कर ले रहे हैं तो automatically दूसरे वाले का 100 - X हो जाएगा। अब एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको एक का एटॉमिक मास A-1 गिवन है, दूसरा A+3 गिवन है, तो हैवियर वाला ऑटोमेटिकली A+3 हो गया। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एवरेज एटॉमिक मास का, तो A-1 इंटू 100 - X प्लस A+3 इंटू X अपॉन 100 और ये वैल्यू आपको A गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से X सॉल्व होके 25% आ जाएगा। तो हैवियर आइसोटोप जो है वो 25% है और जो लाइटर आइसोटोप है वो 75% है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7, it's given a hypothetical element Z exists in a nature as 2 isotopes Z65 and Z67 and their relative abundance are 25% and 75% respectively, then the average atomic mass of the element Z is, तो simply वही average atomic mass का formula apply करना है, A into M1 plus B into M2 upon A plus B, so it comes out to be 65 into 25 plus 67 into 75 by 100। सॉल्व करेंगे तो 66.5 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? 65 इंटू 25 प्लस 67 इंटू 75 अपॉन 100। ओके, क्लियर, समझ आ गया? ओके, एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24.31 AMU। The magnesium is composed of 79 mole% of magnesium 24 and remaining 20 mole% of magnesium 25 and 26. Calculate the mole percentage of magnesium 26. तो हमने assume करा कि देखो mole percentage of magnesium 26 जो है वो अगर X है तो ऑटोमेटिकली मोल परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम 25 कितना हो जाएगा 21 - X, बिकॉज टोटल इज 100। 79% मैग्नीशियम 24 है तो मैग्नीशियम 25 में आप कितना हो गया 21 - X। फिर एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगा दिया A into M1 plus B into M2 plus C into M3 अपॉन A plus B plus C। तो ये आ जाएगा 79 into 24 plus 21 - X into 25 plus 26X by 100 is equal to 24.31 जो आपको गिवन है। यहाँ से सॉल्व करके आप वैल्यू निकालेंगे तो X कम्स आउट टू 10। तो यहाँ से मैग्नीशियम 26 का जो मोल परसेंट हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। ठीक है, then comes question number 9. Question number 9, it's given indium has 2 naturally occurring isotopes. The predominant one form has the isotopic weight of 114.904 or 9041 and the abundance of 95.72%. What is the isotopic weight of the other isotope? It's the same formula, A into M1 plus B into M2 upon A plus B से apply करना है।
सो एवरेज एटॉमिक मास लिखेंगे तो 95.72 एक आइसोटोप का परसेंटेज है और उसका मास है 114.9041। दूसरे आइसोटोप के लिए आपका जो परसेंटेज आ जाएगा वो आ जाएगा 4.28, 100 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लीजिए और उसका आइसोटोपिक मास लेट्स से x, तो अपॉन 100 सॉल्व करेंगे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके, और एवरेज एटॉमिक मास आपको 114.82 गिवन है, सॉल्व करेंगे। यहाँ से सॉल्व करने के बाद x का जो वैल्यू आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी 112.94, तो आइसोटोपिक वेट ऑफ अदर आइसोटोप आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी 112.94। Then comes the question number 10. Question number 10, it's given a sample of element X consists of 3 isotopes A1, A2 and A3, and the population of A2 is 3 times the population of A3. If the average molar mass of the sample is 1.25, determine average population of percentage population of A1. Molar masses of A1, A2 and A3 are 1, 2 and 3 respectively. तो देखो हमने सबसे पहले assume करा कि मोल परसेंटेज ऑफ A3 जो है वो X है, मोल परसेंटेज ऑफ A2 जो है वो ऑटोमेटिकली 3x हो गया क्योंकि पॉपुलेशन 3 टाइम्स गिवन है, और मोल परसेंटेज ऑफ A1 जो है वो अपने आप 100 माइनस 4x हो जाएगा बिकॉज टोटल परसेंटेज तो 100 ही आने वाला है। अब एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 100 माइनस 4x into 1 प्लस 3x into 2 प्लस x into 3 बिकॉज एवरेज आपको एटॉमिक मासेस ऑफ A1, A2, A3 के लिए 1, 2, 3 गिवन है। अपॉन 100 सॉल्व करके लिखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास आपको 1.25 गिवन था, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और जैसे x की वैल्यू 5 आ जाएगी तो यहाँ से परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ A1 अगर कैलकुलेट करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 100 माइनस 4x, x की वैल्यू 5 आपने कैलकुलेट करी है तो दिस कम्स आउट टू बी 80%। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर असाइनमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।